Welcome students. Today we are going to start a new exercise 8.2 of chapter number 8 binomial theorem. And before this we already understood the introduction part of this particular exercise. Correct? We understood general term, middle term. Even we understood one of the term called as independent of x as well. Correct? So today we are going to see some problem based on that only. So let's have a look at question number 1. We want to find the coefficient of x raised to 5 in x plus 3 raised to 8 or in the expansion x plus 3 raised to 8. Now how are we supposed to do this? So I want x raised to 5 somehow, correct? So before that let's say something like this, okay, the general term of the expansion, which expansion a plus b raised to n is, क्या आता है इसका जनरल टर्म, tr plus 1 equals to ncr a raised to n minus r and b raised to r. So the general term of expansion a plus b raised to n is this one. यहाँ पे क्या है x plus 3, then the general term of the expansion x plus 3 raised to 8 is, so accordingly लिखेंगे tr plus 1 n 8 cr, a की जगह पे x n, we know the value of n, right? So it will be 8 minus r और b की जगह पे 3 raised to r, correct? Now if you compare these two, what we are looking to find is x raised to 5. So for the coefficient of x raised to 5, comparing the indices यानी कि पावर कौन सा, तो क्या x raised to 8 minus r equals to x raised to 5, तो ये हो जाएगा 8 minus r equals to 5. So r equals to 8 minus 5 3. Therefore r की वैल्यू 3, तो टर्म मिलेगी फोर्थ. So it will become 8c3 x raised to 5 and 3 raised to 3. Correct. Now what we are looking to find the coefficient of x raised to 5. So I can say coefficient of x raised to 5 is 8c3 into 3 का क्यूब 27, and I expect कि आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे, है ना? You know how to find NCR. 8c3 factorial, it will be 8 factorial upon 3 factorial and 8 minus 3 5 factorial, correct? So you can easily calculate. You have the product of 27 as well, into 27 product में है, so you can get the value very easily, isn't it? So this is how we are supposed to find the coefficient of any term, है ना? अगर मुझे x raised to 5 का coefficient find करना है in this particular expansion, I can do like this. Now I can understand that power is 8, so I can easily go for coefficient of x raised to 6 or 7 or 4 or 3, है ना? So same method होगी, बस आपको क्या ध्यान देना है, indices में. Comparing the indices, you will get the perfect value and it will be easy for us to solve. Correct? You can pause the video and note it down. Now let's have a look at question number 2. Again we want to find the coefficient of a raised to 5 and b raised to 7 in a minus 2b raised to 12. Now see, it is similar to the previous problem, but in the previous problem there is only one term x raised to 5. Why? Because if you look at the expansion ना, तो वहां पे सिर्फ एक x वेरिएबल था, दूसरा 3 कांस्टेंट ही था. That's why. Here same thing, same steps. I am going to just give you the hint. तो जनरल टर्म क्या आएगी? So it will be 12cr a raised to n. That means again 12 minus r, or instead of this it will be minus 2b raised to r, है ना? Now you can go for either of this method. You can either compare the indices of a or you can compare the indices of b. अगर a का कंपेयर करोगे तो a raised to 12 minus r equals to a raised to 5. So 12 minus r equals to 5. So I got r equals to 7. यानी कि टर्म में 8 होगा, 12c7
a रेस टू 5 माइनस 2 रेस टू 7 और b रेस टू 7, करेक्ट. सो 12c7 यानी कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 5 minus 2 raised to 7. So definitely it is going to be negative, but it will be minus 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128. Minus 128 a raised to 5 and b raised to 7. Again ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो. How you are supposed to do this? That is something like this. 12 है तो 12, 11, 10, 9, 8, 7 तक कट हो गया. 5, 4, 3, 2. So 5 इसके साथ कट कर देंगे, करेक्ट. सो बचेगा 2. 4 2 जा 8, 3 3 जा 9. सो 12. ओके, दिस इनटू माइनस 128 a रेस टू 5 b रेस टू 7. नाउ इफ यू टेक अ प्रोडक्ट, सो क्या होगा कि 12 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा. तो 11 6 जा 66. So 12 into 66 into 128, negative bahar, a raised to 5, b raised to 7. Now what will be 66 into 12, 0, 6, 6, 12, 1, 12 and 1, 13, 7, 9, 2 into 128, a raised to 5, b raised to 7. Now I am leaving this for you people. आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो. तीनों दिन का मल्टीप्लीकेशन. सम ऑफ द प्लेसेस वेयर कैलकुलेटर इज अलाउड तो कोई इश्यू है ही नहीं, तो यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर लो. इन द सीबीएसई बोर्ड कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, सो यू पीपल आर सपोज टू कैलकुलेट दिस, है ना. तो यू कैन डू इट इन अ वेरी इजी वे. 3 नंबर्स आर देयर, 3 मल्टीप्लीकेशन. यू कैन आइदर गो बाय द शॉर्टकट मेथड और यू कैन जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई 3 नंबर्स एंड यू विल बी इजीली गेटिंग द आंसर. नाउ सी 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो, सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको अब ऐसे कैलकुलेशंस करके बताने चाहिए, बट स्टिल आई ट्राइड कि मैं यहां तक तो बता ही दूं. सिंपल. चलो मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू इन क्वेश्चन नंबर 3? तो दे जस्ट सिंपली आस्क टू फाइंड द जनरल टर्म. सो व्हाट विल बी द जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपांशन? x स्क्वायर माइनस y रेज टू 6, है ना. तो कैसे फाइंड करेंगे? तो जनरल टर्म विल बी tr प्लस 1 6cr x square raised to 6 minus r and minus y raised to r. जनरल टर्म तो जनरल टर्म ही रहेगी ना. वी डोंट हैव समथिंग लाइक दिस. r की वैल्यू तो पता ही नहीं है. सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस इट विल बी मोर देन लाइक दिस. x raised to 12 minus 2r minus 1 raised to r and y raised to r. You can bring minus 1 raised to r ahead. 6cr x raised to 12 minus 2r into y raised to r. That will be the general term for the question number 3. Similarly question number 4 में भी आपको जनरल टर्म ही पूछी हुई है, करेक्ट, which is something like this. x square minus y x raised to 12 where x is not equals to 0. Again जनरल टर्म का same method, NCR, but we have the value of n available. So 12CR x square का पावर n minus r, तो x square raised to 12 minus r into y x raised to r. Now see here you have x here as well as here. दोनों प्लेसेस पे x है तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. So 12cr x raised to 12 है तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24 minus 2r minus 1 raised to r बाहर ले लो, y raised to r into x raised to r. And if you simplify this like we did in the previous problem, minus 1 raised to r 12cr, 24 minus 2 plus 1, so I guess 24 minus r into y raised to r. This will be the general term for these two questions, है ना. दोनों questions की हमें इस तरह से general term मिल जाएगी, correct. So that is question number 3 and question number 4. Now question number 5 says find the fourth term. कौन सी टर्म फाइंड करनी है? फोर्थ टर्म इन एक्सपांशन ऑफ x minus 2y raised to 12. Now see this is again a simple work of a putting formula. पहले जनरल टर्म निकाल लो. तो जनरल टर्म क्या आएगी? तो 12cr x raised to 12 minus r and minus 2y raised to r.
Now what we are supposed to find? We want to find fourth term. Fourth term, that is r plus 1 equals to 4. तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी. So this is 3 plus 1, 12c3, x raised to 12 minus 3, 9, minus 2 का power 3 and y raised to 3. This will become 8. So minus 8 into 12c3, x raised to 9 into y raised to 3. अगेन कैलकुलेशन पार्ट है, आप लोग कर सकते हो. क्या होगा? माइनस 8 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 9, एक्स रेस टू 9 वाई रेस टू 3 माइनस 8 12 11 एंड 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, एक्स रेस टू 9 वाई रेस टू 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. करेक्ट. बाकी जो बचा वो आप गिन लो. सो 11 8 जा 88, 88 का डबल कितना होगा? 160, 170 एंड 176. करेक्ट. और 176 इंटू 10, सो माइनस 1760, x raised to 9 and y raised to 3. This will be the fourth term in your binomial expansion of x minus 2y raised to 12. Similarly, I am leaving question number 6. What do you say? Should I leave it for you people? है ना, क्योंकि उसमें भी देखो वापस से आपको 13 टर्म ही पूछी है. सो द मेथड इज टोटली सेम. देयर इज नथिंग न्यू इन द मेथड. सो आई एम गिविंग यू टू नॉट, चलो जाने दो, नहीं देना है, ट्राई करना है. लेट्स से क्वेश्चन नंबर 6 हमें फाइंड करनी है 13th टर्म, लेकिन एक्सपांशन कुछ इस तरह से है. 9x माइनस 1 अपॉन 3 रूट एक्स का पावर 18. जनरल टर्म, व्हाट विल बी जनरल टर्म? 18cr, 9x रेस टू 18 माइनस r माइनस 1 अपॉन 3 रूट एक्स रेस टू r. पहले इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे वैल्यू पुट करने के लिए r की, जैसे इसमें किया था. सो 9 रेस टू 18 माइनस r अलग कर देते हैं, x रेस टू 18 माइनस r अलग कर देते हैं, माइनस 1 रेस टू r अलग. करेक्ट. मैं ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ. आई विल क्रिएट अ सम स्पेस फॉर मी ओवर हियर, है ना, सो दैट आई कैन इजीली सॉल्व. या सो कैसे करेंगे? तो बाकी जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में है, तो 1 अपॉन 3 रेस टू r एंड 1 अपॉन रूट x रेस टू r. थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देखते हैं. 18cr, 9 रेस टू 18 माइनस r है, तो 9 यानी कि 3 का स्क्वायर हो सकता है, बिकॉज आई हैव 3 ओवर हियर ना. सो 3 का स्क्वायर होगा. स्क्वायर ऊपर दोगे तो 18 2 जा 36 माइनस 2r, ये ऊपर जाके माइनस r. x रेस टू 18 माइनस r माइनस 1 रेस टू r, ये ऊपर जाके x रेस टू माइनस r बाई 2, है ना. अब देख लेते हैं कि चलो भाई 13 टर्म होगा. चलो एक और लिख लेते हैं. 8cr, यहाँ पे होगा 3 रेस टू 36 माइनस 3r x रेस टू. नाउ वी हैव 18 माइनस r बाई 2. पहले चेक कर लो कितना आएगा, फिर वहां पे डायरेक्ट लिख देंगे. सो अगेन 18 टू 36 माइनस 2r माइनस r, यानी कि सेम थिंग 36 माइनस 3r बाई 2 इंटू माइनस 1 रेस टू r. सिंपल. चलो कितना हो गया. अब फॉर 13th टर्म आई कैन से r प्लस 1 इक्वल्स टू 13, तो r मेरे लिए हो जाएगा 12. सो t 13, 18c12, 3 रेस टू 36, 12 3 जा 36, वेरी गुड, इंटू x. अगेन 12 3 जा 36, तो x का पावर 0 माइनस 1 रेस टू r. तो यहाँ पे देखो आपको जो 13th टर्म मिली है ना, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि x का पावर 0 हो गया. सो यू आर सिंपली गेटिंग, ये भी 0 तो 1 हो जाएगा. ओ सॉरी, माइनस 1 रेस टू 12, और माइनस 1 का पावर इवन है तो पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा सिंपली 18c12. आप लोग 18c12 चेक कर लेना कि क्या आ रहा है, तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर. देखो भले पूछी टर्म है, लेकिन इवेंचुअली वी गॉट दिस एज एन इंडिपेंडेंट टर्म. ये हमें कैसी मिल गई? इंडिपेंडेंट टर्म मिल गई, कि जिसमें आपको x यहाँ पे नहीं है, वो कट हो गया बाय सिंप्लीफाइंग. करेक्ट. सो आई होप दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. You can pause the video and note it down.
नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, मिडल टर्म ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 रेज टू 7। हमें फाइंड करनी है इसकी मिडल टर्म। सबसे पहले ध्यान दो, तो पावर जो है n, इफ n इज ऑड देयर विल बी टू मिडल टर्म, करेक्ट। या फिर आप लिख सकते हो कि हियर n इज 7 विच इज ऑड, there will be two middle term, therefore middle terms are of the expansion 3 minus x cube by 6 raised to 7 are, है ना, तो यहां से r हटा देते हैं, तो यहां लिखेंगे मिडल टर्म्स ऑफ द एक्सपांशन दिस आर। कौन सी आएगी, तो कि एक होगी n प्लस 1/2, है ना, यानी कि 7 प्लस 1/2, 7 प्लस 1 8, 8/2 फोर्थ टर्म, और दूसरी होगी n प्लस 3/2 दैट इज 7 प्लस 3/2 दैट इज 7 प्लस 3 10, 10/2 फिफ्थ टर्म। दो मिडल टर्म मिलेगी, एक थर्ड और एक फिफ्थ। अब देखो फोर्थ टर्म, जैसे हमने टर्म फाइंड करना सीखा इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इफ आई वांट टू फाइंड द फोर्थ टर्म, यानी कि आई कैन से दिस इज टी आर प्लस 1, इजंट इट। अब इसकी जनरल टर्म आपको सोचनी पड़ेगी। इफ यू वांट यू कैन राइट द जनरल टर्म इन दी रफ साइड में लिख सकते हो। सो जनरल टर्म के हिसाब से ये 7c, आर की जगह पे 3, x रेज टू मतलब a रेज टू n माइनस आर, 7 माइनस 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 रेज टू आर विच इज 3। तो ये हो गया 7c3, 3 रेज टू 4 माइनस 1 का क्यूब, x रेज टू 3 रेज टू 3 9 और 6 का क्यूब 216, करेक्ट। सिंप्लीफाई करो तो माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 रेज टू 4 into x raised to 9 upon 216। कैलकुलेशन आई एम लीविंग इट फॉर यू पीपल, है ना। वैसे ही फिफ्थ टर्म भी फाइंड करेंगे यानी कि r की जगह पे 4, सो इट विल बिकम 7c4, 3 रेज टू 7 माइनस 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 रेज टू 4, सो 7c4, 3 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 4 एक्स क्यूब यानी कि 12, और ये होगा 6 रेज टू 4। सिंप्लीफाइंग दिस विल गिव यू द पॉजिटिव आंसर, दिस विल बी नेगेटिव आंसर। ऐसा हो सकता है ना कि भाई आपकी एक टर्म पॉजिटिव हो, एक टर्म नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में नेगेटिव साइन है, डेफिनेटली हमें पता है कि ऑल्टरनेट साइन हो जाएगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सो फोर्थ टर्म जो है वो कहाँ आएगी, फिफ्थ प्लेस पे, है ना, सॉरी थर्ड प्लेस पे। पहली जो टर्म होती है जिसमें 7c0 होगा, 7c0 पॉजिटिव, 7c1 नेगेटिव, 7c2 पॉजिटिव, 7c3 नेगेटिव, 7c3 में नेगेटिव आया और 7c4 में पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। आई एम लीविंग द प्रॉब्लम फॉर यू टू फाइंड द वैल्यू। उतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूं, बिकॉज इवन इफ आई कैलकुलेट ओवर हियर ना, इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। वो आपको अपने आप से करना ही पड़ेगा। द कैलकुलेशन पार्ट यू कैन डू इट वेरी इजीली, है ना। जो अंडरस्टैंडिंग है दैट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू इन अ वेरी इजी वे, सिंपल ना। अगर मान लो यहाँ पे तो जैसे अभी इवन था, अरे सॉरी ऑड था, तो इस तरह से हुआ। लेकिन इफ इट इज इवन लाइक समथिंग लाइक दिस, x by 3 प्लस 9y होल रेज टू 10, करेक्ट। अगर आपका n इवन है तो देयर विल बी ओनली वन मिडल टर्म, करेक्ट। तो वो मिडल टर्म के लिए कौन सी होगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इफ आई गेट द टर्म, आई गेस यू पीपल कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट टर्म, है ना। सो यहाँ पे n जो है वो इवन है, तो देयर विल बी ओनली वन मिडल टर्म। सो द मिडल टर्म इन द एक्सपांशन x by 3 प्लस 9y रेज टू 10 इज क्या आएगा, n by 2 प्लस 1, that is 10 by 2 plus 1 5 plus 1 सिक्स्थ टर्म। सो आपको T6 क्या है वो फाइंड करना है। गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, करेक्ट। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में जो मिडल टर्म आपको मिलेगी उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।
कंसेप्ट समझ लिया है. अगर कोई पर्टिकुलर टर्म पता चल गई है तो कैसे फाइंड करना है. वी नो दैट वी फाउंड फोर्थ टर्म, 13 टर्म, हियर आल्सो फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म. तो वैसे आपको यहाँ पे 6 टर्म फाइंड करनी है. उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एंड विच आई बिलीव यू पीपल कैन डू इट इन अ वेरी वेरी इजी वे. करेक्ट. So this is how you are supposed to find the middle terms. If power is odd, there will be 2 middle term. If power is even, there will be only 1 middle term. Correct. So this is how you are supposed to get the middle terms of a given expansion. You can pause the video and note it down. Now let's go towards the question number 9. अब से जो questions है ना, those are going to be very important. थोड़ा ध्यान से देखना. In the expansion of 1 plus a raised to m plus n, we want to prove that the coefficient of a raised to m, coefficient of a raised to m and a raised to n are equal. है ना. क्या बताना है? coefficient of a raised to m और a raised to n are equal. Now see, beyond the concept कुछ नहीं है ना. जस्ट हम लोग ऐसा बड़े बड़े चीजें देख के डर जाते हैं. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. सबसे पहले जनरल टर्म लिख दो. So that will be m plus n CR 1 raised to m plus n minus r and a raised to r. This is my general term and I will equate as equation number 1. फिर अगर आप देखो तो मुझे क्या क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट ऑफ a raised to m और कोफिशिएंट ऑफ a raised to n, है ना. तो मैं सीधा बोलूंगा कंपेयरिंग या रिप्लेसिंग r by m. क्यों? Because I can see here a raised to r and I can easily replace r by m, है ना. So it will become tm plus 1 m plus n c m. 1 का पावर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? a raised to m. इक्वेशन नंबर 2. Similarly replace r by n in equation number 1. In equation number 1, so it will be tn plus 1 m plus n cn a raised to n. Equation number 3. Now what we are looking to find out कि इन दोनों के कोफिशिएंट जो है वो इक्वल है. So let's say now the coefficient of a raised to m is m plus n cm. Let's simplify this little bit. So it will be m plus n factorial divided by m factorial, and then I will write m plus n minus m factorial, so it will be n factorial. Also we'll find the coefficient of a raised to n. So m plus n cn, so again m plus n factorial divided by n factorial. m plus n minus n will remove n factorial, तो m factorial. चेक करो दोनों इक्वल है. So let me, instead of giving this as equation number 2 and 3, इन दोनों को हटा देते हैं और इन्हें बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इन्हें इक्वेशन नंबर 3. So I can easily say from 2 and 3 coefficient of a raised to m and a raised to n are equal. देखो दोनों सेम है. m plus n factorial, m plus n factorial, m factorial, m factorial, n सब तो सेम है. कहाँ कोई डिफरेंस है ना. एंड यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व दिस एंड गेट द वैल्यू और समथिंग, क्योंकि अननोन है, वैल्यू मिलनी नहीं है. करेक्ट. दोनों सेम दिख रहे हैं, तो वी कैन इजीली से हाँ कि कोफिशिएंट ऑफ a raised to m and a raised to n are equal. आर यू गेटिंग द आइडिया? व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दिस, आपको इस तरह से करना पड़ेगा. करेक्ट. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Now let's have a look at question number 10. The coefficients of r minus 1, rth and r plus 1 terms in the expansion of x plus 1 raised to n are in the ratio 1:3:5 और बोला है फाइंड करो n और r. Now this question is very simple again. सबसे पहले जनरल टर्म क्या है कि NCR x raised to n minus r. Then the question says find the r minus 1th term, है ना. अब बेसिकली ये r plus 1 टर्म तो हमें मिल गई, क्योंकि r plus 1 टर्म भी चाहिए.
Now if I look for r minus 1 term, तो what I can do is NCr minus 2 x raised to n minus r plus 2, because n minus r होता है और ये r minus 2. Similarly rth term क्या होगी, तो क्या NCr minus 1 x raised to n minus r plus 1. This will be the 3 term. जनरल टर्म r plus 1 है, लेकिन क्वेश्चन में भी r plus 1 का तो पूछा ही है, तो वो हमने लिख लिया. Now what we can do is now write the coefficient of r minus 1th, rth and r plus 1th term r क्या क्या है. तो क्या इसका कोएफिशिएंट कितना है, सॉरी पहले r minus 1 टर्म का NCr minus 2, NCr minus 1 and NCr respectively. Also the coefficients are in the ratio 1:3:5. r minus 1 r और r plus 1 ऐसे, करेक्ट. तो इसकी मदद से हम अब इजीली ऐसा लिख सकते हैं that NCr minus 2 upon NCr minus 1, NCr minus 2 upon NCr minus 1 is in the ratio 1:3, and NCr minus 1 upon NCr is in the ratio 3:5. दूसरे लास्ट के दो, करेक्ट. Now you got two equations, you have to simplify this. We'll try to get something. पहले try करते हैं इसे solve करने की, correct. तो it will be n factorial upon r minus 2 factorial n minus r plus 2 factorial divided by n factorial r minus 1 n minus r plus 1 factorial equals to 1/3. तो ये implies का symbol यहाँ. I can easily cut this n factorial. Denominator goes to numerator. So n factorial n minus 1 n minus 2. तो r minus 1 r minus 2 factorial n minus r plus 1 factorial upon r minus 2 factorial, है ना. अब देखो n minus r plus 1 उससे छोटा करोगे, एक्चुअली ये क्या है n minus r minus 1, उससे छोटा करोगे यानी कि n minus r minus 2. वैल्यू गेट लेसर ना. सपोज r की वैल्यू 10 है, करेक्ट. तो 10 minus 1 9, तो समथिंग ऑफ n में से 9 माइनस किया. 10 minus 2 8, समथिंग ऑफ उसमें से माइनस किया. तो ये वैल्यू बड़ी होगी क्या, ये वैल्यू. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी यहाँ पे हमें ध्यान से वही चीज करनी है कि हम यहाँ पे कन्वर्ट कैसे करें, बिकॉज दैट इज व्हाट गोइंग टू बी प्लेइंग अ पार्ट ओवर हियर. लेट मी से n minus r plus 2. फिलहाल ये दोनों तो कट हो गए, सो आई एम लेफ्ट विथ r minus 1 n minus r plus 1. शुड आई गो फॉर दिस वन इंटू प्लस 2, और नीचे से प्लस 2 है तो प्लस 1 में कन्वर्ट होगा. विच वन इज बिगर, अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ध्यान से देखना. n minus r minus 1 n minus r minus 2. फॉर इंस्टेंस टेक n equals to 10 and r equals to 5. So 10 minus 5 minus 1, 5 minus 1 4, तो ये 6, और यहाँ पे 10 minus 5 minus 2 यानी कि 3, तो ये 7, है ना. यहाँ पे समझ क्या रहे कि विच इज वैल्यू बिगर, जो बिगर होगी वो रिड्यूस होके छोटे में जाएगी. सो विच इज बिगर, दिस वन, है ना. तो वो रिड्यूस होके छोटे में जाएगी, तो n minus r plus 2 factorial n minus r plus 1 factorial. ये सॉरी यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं होगा, ये दोनों रिमूव हो गए. अब इससे आपको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी. कैसे, तो के 3r minus 3 equals to n minus r plus 2 क्रॉस मल्टीप्लाई. सो इट विल बिकम n minus 4r, 3r इधर जाएगा तो माइनस 3 भी इधर जाएगा तो प्लस 3 plus 2 5. Let me call it as equation number 1. n minus 4r plus 5 equals to 0. ये आपको सिर्फ ये सॉल्व करने से मिली है. वैसे आपको इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा to get the another equation.
चलो तो अब उसे भी सॉल्व करते हैं जिससे हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाए, इजंट इट? और दो इक्वेशन अगर मिल जाएगी तो फिर तो आप लोग कर सकते हो, बिकॉज आई नो दैट यू पीपल आर स्मार्ट इनफ कि आपको पता हो कैसे दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा जाएगा। तो अगेन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर इंटू आर इज इक्वल्स टू 3/5। n गेट कैंसल्ड, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर। तो ये दोनों कट इज इक्वल्स टू 3/5। सो आई गॉट 5r इक्वल्स टू 3n माइनस 3r प्लस 3। आई हैव टू ब्रिंग r ऑन द अदर साइड, तो -5 माइनस 3 माइनस 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2, है ना। नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन यू विल बी गेटिंग द आंसर। करना क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस विल बिकम 3n माइनस 4 3 12r प्लस 5 3 15 इक्वल्स टू 0, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट हो गया, यहाँ से बचा 4r, यहाँ से बचा माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो 12/4 यानी कि 3। r की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, लेट्स से n माइनस 4 3 12, 12 माइनस 12 प्लस 5 7, तो n की वैल्यू 7 हो गया। आर यू गेटिंग? इस तरह से आपको ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ते हैं। एंड इफ यू बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वन ऑफ द, क्योंकि इसके बाद भी और दो प्रॉब्लम है, दोस टू आर ऑल्सो गुड वन, but this is one of the important questions. And if people are looking, or if the faculties are looking to ask for a 3 mark, it's a way too much good question to ask in 3 mark, क्योंकि लेंथी भी है, कंसेप्ट भी चेक हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स मैच करने आते कि नहीं आते वो भी पता चल जाएगा। सो वो सारी चीजें आपकी एक ही बार में इस प्रॉब्लम में चेक हो जाती है, करेक्ट। मेक श्योर आप अच्छे से लिख लो। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में? Prove that the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n is twice, देखो 1 plus x raised to 2n का जो कोफिशिएंट, मतलब इसमें x raised to n का जो कोफिशिएंट होगा वो twice the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1। तो सीधे सीधा काम एक करते हैं कि पहले तो इसकी जनरल टर्म, सो 2ncr, 1 का पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और x रेज टू r, करेक्ट। और हम देख रहे हैं किसके लिए? कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू n। सो फॉर द x रेज टू n, कंपेयरिंग द पावर ऑफ x, we get r equals to n। so, भले टर्म कोई भी बने, दिस इज 2ncn और ये हो जाएगा x रेज टू n। therefore the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n is 2ncn, that is 2n factorial upon n factorial, और 2n minus n भी n factorial आएगा। लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसके लिए अगर आप देखोगे तो जनरल टर्म क्या होगी? तो इट विल बी tr प्लस 1 इक्वल्स टू 2n माइनस 1 cr, 1 का पावर जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिख लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, और x का पावर r। अगेन कंपेयरिंग सब करो, r की वैल्यू n मिल जाएगी, तो यू विल बी गेटिंग n प्लस 1 के लिए 2n माइनस 1 cn x रेज टू n। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इन द एक्सपांशन, किसका एक्सपांशन? 1 प्लस x रेज टू 2n माइनस 1 के, क्या है आपका
2n माइनस 1 cn, इसको स्प्लिट करो, सो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, और 2n माइनस 1 माइनस n, तो 2n में से n जाएगा तो डेफिनेटली इट विल बी n माइनस 1 फैक्टोरियल। लेकिन हमें तो ऐसा बोला है कि ये जो है इसका जो कोफिशिएंट आया 1 प्लस एक्स रेस टू 2n में एक्स रेस टू n का, वो ट्वाइस होगा टू दिस वन। अब ये ट्वाइस कैसे करेंगे, बिकॉज आई कैन सी समथिंग लाइक 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्रिएट क्या करना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हाफ ऑफ दिस। तो देखो 2n माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 से 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल को अभी रहने देते हैं, विल ट्राई टू थिंक ऑफ इन अ डिफरेंट वे। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि चलो 2n माइनस 1 बाहर निकाला, 2n फैक्टोरियल आ गया, नीचे एक n है, लेकिन एक n की कमी है, ऊपर एक n है ना, अरे नीचे एक n फैक्टोरियल, और यहाँ पे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल है। तो फिर कैसे करेंगे, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं n से, तो आई कैन जनरेट n फैक्टोरियल, है ना। एक मिनट थोड़ा चेक कर लेने दो, ये 2n माइनस 1 माइनस n, तो डेफिनेटली n माइनस 1 फैक्टोरियल ही आएगा, करेक्ट है। लेकिन अब इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करें, तो इफ आई थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस, के भाई चलो n से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, सो n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n, और n इंटू n माइनस 1। आई डोंट थिंक सो कि ये एडजस्ट होगा, करेक्ट। 2n फैक्टोरियल कुछ और सोचना पड़ेगा, लेट्स थिंक ऑफ समथिंग एल्स, कि ऐसा तो क्या करे कि जिससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखो हमारे पास 2n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो उससे सॉरी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की, माय बैड। मैंने क्या किया, 2n माइनस 1 से 2n फैक्टोरियल, अरे वैल्यू रिड्यूस होती है बराबर है, लेकिन रिड्यूस होकर -2 होगा, सो हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2n ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में देखो आपका हो गया 2n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 2 इंटू n फैक्टोरियल ये, और n फैक्टोरियल ये, जिससे ये हो गया 1/2 टाइम्स 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐसा लिख देना है, फ्रॉम 1 and 2 द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n फॉर द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस 2 रेज़ टू n is twice of the coefficient of x raised to n of the expansion 1 plus x raised to 2n minus 1। यहाँ पे ध्यान देना, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। We have 2n minus 1, I make a mistake, मैंने क्या लिखा 2n minus 1 से 2n, how is it possible, वो तो वैल्यू इंक्रीज हो गई, हमें रिड्यूस होते हुए दिखती है जब भी फैक्टोरियल से हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे 2n लाने के लिए 2n से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल मेक्स इट 2n फैक्टोरियल, और नीचे मैंने इसको आगे ले लिया, सो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल मेक्स n फैक्टोरियल, और ये तो n है, तो वो हो गया 2 कॉमन बाहर रखो, सो ये और वो देखोगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डबल, ट्वाइस हो रहे ना, क्योंकि ये इसकी आधी है। सो दिस पर्टिकुलर कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n ऑफ द एक्सपांशन 1 प्लस x रेज़ टू 2n इज ट्वाइस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n of the expansion 1 plus x raised to 2n minus 1। आपको आगे से prove that हटा देना है, बाकी वापस लिखना है। Am I clear? So this is how it is supposed to be solved। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देना, थोड़ा रिवर्स एडजस्ट करना है। So this is how it is supposed to be solved। You can pause the video and note it down। Now let's go for question number 12। Again it is a nice problem। Find the positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x raised to m is 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल टर्म MCR 1 raised to m minus r x raised to m, और क्वेश्चन ने बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दिया हुआ है आपको 6। पहले यहां से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। नाउ क्या करेंगे, रिप्लेसिंग m by 2, okay sorry not m,
माय बैड r, तो m कहां से आ गया, या सॉरी, दैट विल बी r, सो 2 + 1 3 mc2 x raised to 2, thus the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x raised to m is 6, therefore mc2 equals to 6. अब mc2 को सॉल्व करो, जो भी m की वैल्यू मिलेगी आपको पॉजिटिव लेने को बोला है तो हम पॉजिटिव ले लेंगे. कैसे सॉल्व करोगे, mc2 यानी m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6. m फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज m इंटू m माइनस 1, क्योंकि m माइनस 2 फैक्टोरियल कट डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6. सो ये हो गया m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल्स टू 0. 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आंसर -1 आए, वो भी -12 के. सो आई गेस 4 3s are -4, दिस -1, करेक्ट. हाँ, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल्स टू 0. तो आपके फैक्टर होंगे m माइनस 4 m प्लस 3, तो m की वैल्यू मिलेगी 4 और -3, 4 और -3. जैसे ही m की वैल्यू पॉजिटिव बोली है तो इसका तो सीधे सीधा यही मतलब होगा ना कि देयरफॉर m इक्वल्स टू 4 इज द सॉल्यूशन. इसमें और ज्यादा कुछ सोचने की तो बात है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेने बोली है तो डेफिनेटली m की वैल्यू 4 आएगी, m की वैल्यू -3 आपकी जो है वो इग्नोर हो जाएगी. मींस यू कैन राइट हियर नॉट पॉसिबल and therefore m equals to 4, which is a positive value of m. Am I clear? So जिससे आपको आपका कोफिशिएंट भी प्रॉपर्ली सेटिस्फाई हो गया. ये बहुत इजी प्रॉब्लम है एक्चुअली, इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम इन द एक्सरसाइज, वन ऑफ द, क्योंकि ऊपर जो टर्म है मिडिल टर्म है वो सब इजी है, बट दिस इज ऑल्सो गुड वन. लास्ट के 4 क्वेश्चन में से ये कंपेरेटिवली थोड़ा इजी लगेगा आपको, करेक्ट. सो आई गेस दैट्स वेयर द एक्सरसाइज एंड विल स्टॉप हियर ओनली फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.